Hello students, I am Sonu Kasana, your English teacher, and this is the grammar video of chapter 10, the perfect tense. We will read about perfect tense today. So let's start. Okay, listen. First of all, we will read some examples. Very first example is we have finished our work. है ना, we have finished our work. हमने अपना काम ख़त्म कर दिया है, finished कर दिया है. Second one is I have informed him about the track. And third one is Ravi has eaten all the cake. Ravi has eaten all the cake. ओके स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. परफेक्ट मीन्स कंप्लीशन. जब आपका कोई वर्क, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, हमें उसकी जानकारी देनी होती है वर्क की, उस एक्शन की. तब हम जो सेंटेंस बोलते हैं, जो वाक्य हम दोहराते हैं, तो वो वाक्य होता है परफेक्ट. वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो according to these example, helping verb we find here have and has. Okay, in present perfect tense we use have and has as helping verb. Okay, second thing, the structure of the sentence is for affirmative sentences, only for affirmative sentences. Subject has have, third form of the verb plus object. Okay, third form of the verb. The as example is she has taught us how to speak. Okay, taught. Taught is the third form of the teach, of teach. TEACH, teach. Teach means पढ़ाना. उसी का थर्ड फॉर्म होती है taught. तो आपको थर्ड फॉर्म जरूर लर्न कर लेनी है अगर आप परफेक्ट सेंटेंसेस की कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं. यू हैव टू लर्न द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो सेकंड, दे हैव ट्रेवल्ड अ लॉट. ट्रैवल मीन्स यात्रा करना होता है और ट्रैवल्ड मीन्स यात्रा की, है ना. ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन. फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस we just add not in the स्ट्रक्चर वी डिस्कस्ड अबाव. हमने जो ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, हम उसी में बस जस्ट नॉट ऐड कर देते हैं, नथिंग एल्स. एज सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, टेक एन एग्जाम्पल. द ड्राइवर हैज नॉट कम येट. सो वी fix not between the have and main verb. Okay, not after the helping verb and before the main verb. Okay students. Okay, the third structure is for interrogative sentences. Interrogative or query is about asking questions. Okay, so we will put helping verb first and then anything else like subject and verb, third form of the verb and object. uh, Structure is has have plus subject plus third form of the verb plus object. First example, have we completed our work. Have we completed our work. क्या हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है. ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन. यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अनफिनिश्ड एक्शंस एंड फिनिश्ड एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज किया था. अनफिनिश्ड को कैसे, चलिए लेट्स वॉच इट. टू टॉक अबाउट unfinished actions they shared in the past and continue in the present. जैसे I have known
आशीष फॉर 10 years नाउ। आई हैव नोन, मैं जानता हूँ आशीष को, फॉर 10 years नाउ, है ना, 10 साल से। सेकेंड वन इज कपिल हैज़ बीन हेयर सिंस 2 PM। कपिल यहाँ 2 बजे से है। ओके, ये आपका अनफिनिश्ड एक्शंस हैं, है ना, 2 बजे से है, अभी गया नहीं है, अभी वहाँ पे ही प्रेजेंट है। सर जस्ट मिनट। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वी यूज सिंस विद ए फिक्स्ड टाइम इन द पास्ट, है ना, एज 2005 April 15, 2 hours ago, 3 AM, है ना, like that. Second one, they have known him since 1995. Kapil has been here since 2 PM. And we use for 5 years, 3 years, 6 months, a week. Now they have been hungry for 2 hours and he has had cold for 2 weeks, है ना, like this. And finished action. Finished actions means क्या? Very first example is to talk about life experiences. We do not specify when the action had happened. In the it happened just sometimes in the past. As Mukesh has lived in Japan. Mukesh has lived in Japan. मुकेश जापान में रहता था। हैव यू रीड पैराडाइज लॉस्ट, क्या तुमने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा है? तो ये ऐसे एक्शंस हैं जिनमें हम स्पेसिफाई नहीं करते कि एक्शन कब हुआ। सेकंड है आपका टू टॉक अबाउट ए फिनिश्ड एक्शन विद ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट, है ना, जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में हमारे पास अवेलेबल है, इस तरह के एक्शंस की बात करना। तो वेरी फर्स्ट इज मदर हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द लंच। मदर हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द लंच। द सेकेंड वन इज आई हैव लॉस्ट माई बैग, है ना। तो इस तरह से हमें पता चल चुका है कि लंच बन चुका है, बैग खो चुका है। रिशा हैज़ मिस्ड हर फ्लाइट, रिशा अपनी फ्लाइट को मिस कर चुकी है, इनका रिजल्ट आ चुका है ना। थर्ड वन इज टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बट द एग्जैक्ट टाइम इज अननोन। ये दिखाने के लिए कि कोई काम तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन समय नहीं पता। जैसे क्रिस एंड हिज फ्रेंड्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। क्रिस और उसके फ्रेंड्स ने सबमिटेड कर दिया है असाइनमेंट को। दे हैव नॉट सीन मी दिस मंथ, मैंने उन्हें इन महीनों में नहीं देखा। आई हैव इन्फॉर्म्ड दैम अबाउट द होमवर्क, मैं उन्हें होमवर्क के बारे में इन्फॉर्म कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज आपका अभी तक का ये हुआ। ओके, चलिए जी, पास्ट परफेक्ट के बारे में अगर बात करें, पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। एंड वी हैव टू यूज़ ओनली हैड बिफोर इन प्लेस ऑफ हैज़ एंड हैव। ओके, जो हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ हैव यूज़ कर रहे थे, हम उसकी जगह पे अब हैड यूज़ करने वाले हैं। जैसे हैड टेकन ऑफ, हैड डाइड, हैड नॉन। ओके स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट इज द प्लान हैड टेकन ऑफ व्हेन शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची तो हैड टेकन ऑफ मतलब टेक ऑफ कर चुका था। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस द वेरी फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो आपका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई हैड प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में फुटबॉल खेला। सेकेंड है सी हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर, वो पहले इंग्लिश पढ़ती थी। ओके, के लिए भी सेम चीज रहेगी। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, हैड प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वी हैव टू फिक्स नॉट ओनली, हमें नॉट डालना है हैड के और वर्ब के बीच में। जैसे दे हैड नॉट मूव्ड टू न्यूयॉर्क, दे हैड नॉट मूव्ड टू न्यूयॉर्क, दे हैड नॉट मूव्ड टू न्यूयॉर्क। सेकंड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट आपको करना है क्या, आपको हेल्पिंग वर्ब को निकाल देना है बाहर, जैसा कि हमने प्रेजेंट में भी किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड मोहन विड्रॉन द मनी, बस हैड आ गया तो क्या से स्टार्ट करेंगे, हिंदी क्या हो जाएगी, क्या मोहन ने मनी निकाल ली है,
या मोहन निकाल चुका था, मनी निकाल चुका था, है ना। चलिए जी, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट आर द यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यू हैव टू रीड अबाउट दिस, है ना। टू शो अ कंप्लीट एक्शंस बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। सेकंड, टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट। थर्ड है टू स्टेट ए कंडीशन, कोई कंडीशन बताने के लिए, कोई रीजन बताने के लिए, या किसी कंप्लीटेड एक्शन की जानकारी बताने के लिए। चलिए फ्यूचर परफेक्ट में आ जाइए। सी विल हैव लर्नड स्विमिंग, वो स्विमिंग सीख चुकेगी, है ना। सी विल हैव लर्नड स्विमिंग। एंड जॉन विल हैव टोल्ड हर मदर। ओके, यहाँ पे ऐसे होता है कि आपको विल जो कि फ्यूचर की इंडिकेशन करता है, और हैव जो कि परफेक्ट की इंडिकेशन करता है, तो इससे मिला करके फ्यूचर परफेक्ट बन आता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाइए। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट विल सेल आएगा, प्लस में हैव आएगा। ओके, हैव ही यूज होना है, हैज यूज नहीं होगा, हैज यूज नहीं होगा फ्यूचर में, केवल हैव यूज होता है सबके साथ में। विल सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से यूज होता है, मैं बता देता हूँ आपको। आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ सेल यूज करेंगे, ओके। और रिमेनिंग ऑल के साथ बचे हुए सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी बात को बहुत जोर दे करके या मतलब उसे बिल्कुल निश्चितता के साथ कहा जा रहा है, तब बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी सबके साथ सेल लगता है। ठीक है, तो आई वी के साथ विल को देख करके परेशान नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए निगेटिव सेंटेंसेज में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद विल, सब्जेक्ट विल और फिर नोट आता है, फिर हैव आता है। ओके, सब्जेक्ट विल सेल में से एक आएगा, फिर नोट आ जाएगा, और फिर बाद में हैव आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, क्लियर सी बात है। आ जाइए जी फॉर इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल आपका बाहर आ जाएगा, विल सेल बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैव यहीं पे रहेगा आपका। इस बार हैव आपका बाहर नहीं जाएगा, हैव आपका यहीं पे रहेगा, और आपका विल सेल में से कोई एक बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे विल यू हैव ईटन व्हेन आई पिक यू अप, विल यू हैव ईटन व्हेन आई पिक यू अप, है ना, जब मैंने आपको पिक किया, क्या आप खा चुके थे, ऐसे। अब यूजेज ऑफ द पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैव बीन completed बिफोर ए गिवन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि किसी गिवन पॉइंट से पहले पहले कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी होगी, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, है ना, उस समय तक अगले महीने में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, इस तरह से फ्यूचर में। सेकेंड थिंग इज यस, ओनली बाई द टाइम यू रीड माई लेटर, उस समय जब तुम मेरा लेटर पढ़ोगे, आई विल हैव रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा। एंड द लास्ट वन इज विल नॉट दे हैव अराइव्ड बाई 5 PM, विल दे नॉट हैव अराइव्ड बाई 5 PM, क्या वे 5 बजे तक नहीं पहुंच चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द सेंटेंसेज एंड एक्सरसाइज को फर्स्ट में बताता हूँ आपको क्या करना है, वो वक्त तो आपको चीज़ें करनी हैं। अब आपको करना है इसमें ये कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग परफेक्ट टेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन, है ना। जैसे मदर कुक डिलीशियस फूड, तो मदर हैज़ कुकड आएगा, मदर हैज़ कुकड डिलीशियस फूड, हमें पता है परफेक्ट में हैज़ आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके जी, अब एक और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सगुन स्टार्ट डांस लेसन्स, है ना, तो सगुन हैज स्टार्टेड, एक आपका हैज़ आएगा सगुन के साथ में, और स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड, और डांस लेसन्स ये ऐसे ही रहेगा। दूसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर, ओके, उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। तो हैव कहाँ आएगा, हैव आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के बाद साथ, जो प्लूरल आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपका हैव आएगा। जैसे मैं बता दूं कौन कौन से, जैसे आई, वी,
यू, दे या कोई दो नाम एंड से जुड़े हों। अगर एंड से जुड़े होते हैं दो नाम तो वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यदि और से जुड़े हों, ओ आर और से जुड़े हों, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माय चैनल।